Good evening, dear student. The last class I taught you energy. I have started your new chapter energy, and in energy first I taught you कि work, that work कि when you are applying a force, and by applying a force body move from one place to the another place, then in that situation work should be done. Okay. But if you are applying a force and body is not moving from one place to the another place, and then in that situation work is not done, and work unit is joule. Okay, and the formula of work equals to force into distance in the direction of a force. Clear? Now the next one is the energy. Energy is the capacity to doing work, and the relation between energy and work both are related to each of other. जितनी आप वर्क करते हो उतनी आपकी एनर्जी लगती है, और अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही आप वर्क करते हो, एंड बोथ आर इक्वल टू ईच ऑफ अदर. दैट्स वाई बोथ यूनिट इज सेम, कि एनर्जी यूनिट इज ऑल्सो बी जूल, एंड द अदर यूनिट ऑफ अ जूल, other unit of a energy is calorie. And have you note down the relation between calorie and joule? 1 calorie equals to 4.2 joule. Clear? So today topic is your different form of a energy. Okay, different form of a energy, and you can say ki type of a energy. There are various type of a energy, various different form of a energy, but in your book you have only 8 types of a energy. Okay, now the first one is the mechanical energy. The mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. It means this energy is created by two energy. One is kinetic energy and the second one is the potential energy. Okay, briefly you will read kinetic energy and potential energy in the next topic. Okay, बस अभी इतना समझो कि काइनेटिक एनर्जी इज पॉजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन, कि व्हेन योर बॉडी इज इन अ मोशन कंडीशन देन काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इट्स शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, it's produce potential energy, and sum of these two, kinetic and potential energy, is called your mechanical energy. So the energy possessed by a body due to its state of rest or state of motion, state of rest and state of motion is called mechanical energy. Clear? Now the state of motion क्या है आपकी kinetic energy, और rest क्या है आपकी potential energy. ठीक है? Now mechanical energy is found in the two forms, namely potential energy and kinetic energy, and you have a formula also कि mechanical energy equals to kinetic energy plus potential energy. जितनी आपकी kinetic energy लगती है उतनी आपकी potential energy भी लगती है, and when you will add these both of energy then you will get mechanical energy. For example, a car is in a motion, an arrow, a stretching bow, these all are example of mechanical energy. See, fan is also example of a mechanical energy. Okay, I am explaining this bow. ठीक है, you can see the assume the shape of a bow, कि bow का shape कैसा होता है. जब आप इस thread को stretch करते हैं, pull करते हैं, तो when you are pulling then the shape of this बो इज चेंजिंग. उस टाइम पे इस बो का शेप क्या होता है, चेंज हो रहा है. तो बाई चेंजिंग दियर पोजीशन, उसकी पोजीशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. जैसे ही आपने बो को खींचा तो उससे आप एरो को क्या करते हैं, छोड़ते हैं. जैसे ही आपने एरो को छोड़ा देन एरो इज इन अ कंडीशन ऑफ अ मोशन, क्योंकि एरो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, वन प्लेस टू द अनदर प्लेस मूव कर रहा है वो. तो वहाँ पे आपकी क्या लग रहा है, ड्यू टू चेंजिंग द पोजीशन आपका एरो क्या हुआ, जा रहा है आगे. ठीक है, और किसकी वजह से जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी. जितनी पोटेंशियल एनर्जी लगाई उतनी वो क्या कर रहा है, आगे तक जा रहा है. दैट्स वाई कि वो इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज अ हीट एनर्जी. हीट एनर्जी सीधे सीधे आपको पता चल रही है, जिससे आपको हीट मिलती है. ठीक है ना, और हीट आपको कैसे मिलती है, व्हेन द सब्सटेंस इज इन अ सिचुएशन ऑफ अ बर्निंग, कि कभी भी कोई भी चीज़ बर्न हो रही है, जल रही है, देन हीट इज प्रोवाइड. सो इन दैट सिचुएशन द हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल,
कि सपोज यू आर बॉइलिंग अ वाटर, यू आर हीटिंग द वाटर, ठीक है, वे इन द ड्यूरेशन ऑफ अ हीटिंग अ वाटर, तो पानी कब गर्म होता है, जब उसमें बबल्स आते हैं, बबल्स आ रहे हैं, इट मीन जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर इन अ मोशन कंडीशन, वो ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, मोशन की क्रिएट कर रहे हैं, और मोशन कर रहे हैं तो उससे आपकी क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आपकी हीट प्रोवाइड होती है। सिंपल सा एग्जांपल, व्हेन यू आर रबिंग योर पाम, अपने हाथों को जब आप रब करते हैं, पहले अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो इन विंटर सीजन्स व्हेन यू आर रबिंग योर हैंड्स, देन हीट इज प्रोवाइड इन द सेंस ऑफ आपके हाथ गर्म होते हैं, ठीक है। तो द सेम सिचुएशन कि द कंडीशन ऑफ अ मोशन कि आपके क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब आप मोशन क्रिएट कर रहे हो तो मतलब आप वर्क कर रहे हो, और जो वर्क करते हो उससे आपको क्या होती है, हीट प्रोवाइड होती है। तो दैट्स वाई दिस वर्क इज कॉल्ड योर हीट एनर्जी। जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस वर्क से, दैट इज हीट एनर्जी। नाउ यहाँ पे आपके पास है कि जेम्स वाट, अबाउट द जेम्स वाट, कि जेम्स वाट इन द ईयर ऑफ 1765 इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था जेम्स वाट ने, जिसका कि यूज़ हीट एनर्जी के लिए किया जाता था, एंड बाय हीटिंग आपकी ट्रेन क्या होती थी, चलती थी, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट वन इज अ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, और हमें लाइट काई से मिलती है, सन से, ठीक है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेंस ऑफ कि जब आपकी सन रेज आपको मिलती हैं, प्लांट्स को मिलती हैं, तो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, और किससे बना रहे हैं, सन की एनर्जी से, ओके। So the light is a form of a energy in the presence of which other objects are seen. Yes or no? Light is a form of energy which you have read in the 6th class. Why it is form of energy? I think you knows. If you did not, if you forget this कि why light is a form of energy, then you can open your 6th class book. Okay. Then in presence कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लाइट का यूज़ क्यों करते हैं, टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड लाइट ऑलवेज गो इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड यू कैन नॉट फील द लाइट, ओनली यू कैन सी द लाइट, ठीक है। नाउ we do not feel light energy because ordinary light does not move the object around us, but light always go or a flow through a beam of a bundle, okay. beam of a light can move small particles like, और जो इसमें small particles होते हैं, that is like electrons, okay. in 6th class you have read कि light travel in a straight line, और इसका आपने by rectilinear propagation of a light भी पढ़ा था कि by experiment you have proof कि light travel in a straight line and cast shadow of a opaque object. The plants converted light into chemical energy, और जो plants होते हैं that is a conversion to light to chemical, क्योंकि light it means पहले आपको क्या होती है, sun मिलता है, plants को sun मिलता है, और by the process कि वो sun की प्रेजेंस में अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और जितना भी आपका फूडिंग होता है वो सारा क्या होता है, केमिकल होता है। दैट्स वाई कि जो आपका लाइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी में, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, द एनर्जी पॉसेस बाय द फ्यूल सच एज अ कॉइल, ऑयल, गैस, सन, ठीक है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा बाई इन द प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस, किसके से बनता है ये, सन की लाइट से, ठीक है, इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी। द केमिकल एनर्जी ऑफ ए पेट्रोल और ए डीजल इज कैपेबल टू मूव अ कार और अ ट्रक। द फूड दैट वी ईट पॉसेस केमिकल एनर्जी एंड मेक अस टू डू वर्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ साउंड एनर्जी। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है उसके बाद ही आपको साउंड सुनाई देती है, और बॉडी वाइब्रेट हो रही है इट मीन्स वो मूव कर रही है इट मीन्स वर्क कर रही है, और वर्क कर रही है इट मीन्स एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, साउंड एनर्जी,
Okay, so a vibrating body possesses sound energy. When sound produced by a vibrating body reach our air membranes, it begins to vibrate and we hear the sound of the vibrating body. We can hear the sound when the numbers of a vibration per second or a range of human being is 20 hertz to 20,000 hertz. This you have to remember कि sound energy the range is 20 to 20,000 hertz. ठीक है, ध्यान रखना. थ्री टाइप ऑफ एनर्जी होती है. एक ऑडिबल साउंड होती है, एक इंफ्रा होती है और एक अल्ट्रा होती है. क्लियर. जो आपके ह्यूमंस बीइंग होते हैं, जो हम लोग सुन पाते हैं, वो 20 to 20,000 हर्ट्ज होती हैं. और एक होती है जो ग्रेटर देन ऑफ 20,000 हर्ट्ज सुन पाते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तेज होती है. ठीक है, दैट साउंड इज कॉल्ड योर अल्ट्रासोनिक साउंड. और एक होती है लेस देन ऑफ 20 हर्ट्ज, जो कि लाइक एज रैट्स, जो होल्स में रहते हैं. ठीक है, रैट, ये सारे एनिमल सुन पाते हैं. और 20,000 हर्ट्ज लाइक एज एग्जाम्पल ऑफ अ बैट. ठीक है. नाउ on the other hand, some animals like bat etc. can hear the sound vibrating per second above the 20,000. For example, a tuning fork with stuck gently on a rubber pad. ठीक है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ अल्ट्रासोनिक साउंड. आपके पास नेमिंग नहीं दी हुई है, बट आपको ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ मैग्नेटिक एनर्जी. मैग्नेटिक एनर्जी विच एनर्जी पॉजेस ड्यू टू मैग्नेट. ठीक है. और मैग्नेट चैप्टर जब मैंने 6th क्लास में एक्सप्लेन किया था, तो मैंने कंडीशन बताई थी मैग्नेट की. 2 सिचुएशन होती है. द फर्स्ट वन इज द अट्रैक्शन एंड द सेकेंड वन इज द रिपल्सन. तो इन द सिचुएशन ऑफ अ रिपल्सन, इन द सिचुएशन ऑफ अ अट्रैक्शन, वर्क कर रहे हैं, मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मैग्नेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, रिपल हो रहे हैं. तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं. और इस वर्क से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द रिपल्शन टाइम, ड्यूरिंग द अट्रैक्शन टाइम, दैट एनर्जी इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक एनर्जी. ठीक है. The energy possessed by a magnet is called the magnet. A magnet can attract an iron nails from a distance, and thus the force attracted by the magnet makes the nails of a move toward the magnet. An electric meter which is used to run a fan or other machines are also provided with a magnet. जितने भी आपकी इलेक्ट्रिकली सब्सटेंस होते हैं, सारे में आपका मैग्नेट लगा होता है, क्योंकि मैग्नेट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर इलेक्ट्रिक बेल होता है. ये सारे प्रिंसिपल वर्क करते हैं मैग्नेट पे. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है. कि when you have a two dry substance or a two dry bodies and when you are rubbing, ठीक है, when you are rubbing then they are attract to each other. और attract क्यों होते हैं? because they have a charge. उनमें चार्ज आ जाता है. ये आपको पता है कि like as a magnet, magnet मतलब नॉर्थ साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ अट्रैक्ट होते हैं. like the same as in case of a charge, प्लस चार्ज माइनस चार्ज से अट्रैक्ट होता है और माइनस प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होता है. और यहाँ पे भी यही होता है. फॉर एग्जाम्पल कि यू हैव अ कॉम एंड यू आर रबिंग विद अ सिल्क क्लॉथ और योर हेयर्स. ओके, एंड यू हैव टाइनी पीसेज ऑफ पेपर. इफ यू विल बाय रबिंग, आफ्टर रबिंग, इफ यू विल अगर आप कॉम को नज़दीक लेकर आओ पीसेस के, जो आपने छोटे छोटे पेपर किए, देन यू विल ऑब्जर्व कि द पीसेज आर अट्रैक्ट बाय द कॉम. और क्यों अट्रैक्ट हुए? ऑब्वियसली आपने जो पीसेस पेपर के किए थे उसमें तो कोई भी कुछ भी नहीं था. ठीक है, उसमें प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या फिर अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको कोई करंट नहीं आएगा. बट बाय रबिंग दोनों में क्या आया? चार्ज आया. एंड बाय चार्जिंग वो क्या हुई? एक दूसरे से कनेक्ट हुई. सो इसमें जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज एटॉमिक एनर्जी और ए न्यूक्लियर एनर्जी. एटॉमिक और ए न्यूक्लियर एनर्जी जो एटम्स में लगती है. और एटम इज कंसिस्ट बाय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ओके. So the energy stored in atom is called atomic energy. The atomic energy can be used for peaceful as well as or a destructive purpose.
For peaceful purpose, atomic reactors are used to be produced electric energy from atomic energy. For distributive purpose, atom bomb is used for the destroying the enemy in a war. Yes or no? Atom का use कहाँ किया जाता है? To destroy the enemy. Okay. Actually, atomic energy is the energy released due to the loss in mass when either a heavy nucleus splits into two light nuclei or a two light nuclei combination to form a one nuclei under certain circumstances. That's why atomic energy is called the nuclear energy. Nuclear energy का नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जहाँ पे atomic का नाम आता है वहाँ पे दो सिचुएशन होता है, फ्यूज़न और फीज़न का. एक सिचुएशन वो होती है जहाँ पे छोटे छोटे एटम्स आपका एक बड़ा एटम बन जाता है, ठीक है, जिससे आप डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है. और पीसफुल पर्पस इन द सेंस ऑफ जहाँ पे एक बड़ा एटम लाइक एज अ यूरेनियम आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं छोटे छोटे पार्टों में. ओके, सो रीड दिस, बी केयरफुली and just read the form of mechanical energy, then I will explain. Okay.